Okay, dear students, we are continuing with chapter number 2, which is of part 2. Part 2 book of accounts, chapter 2, accounting from debentures. Earlier video, last in theory, we have seen that debentures, like shares, can be issued at par, at premium or at even at discount. है ना, शेयर्स तो पार और प्रीमियम ही हो सकता है, डिस्काउंट nowadays it's not allowed, but debentures can even be issued at a discount. Now, before going for any practical question, I want you to note that these are the numbers of the topics of index which are totally eliminated due to COVID-19 syllabus deduction. Syllabus has been reduced and all these topics of index, topic number 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, all these topics are completely eliminated for this particular year. Mark allocation is same. Up till now, no change has been reported to us. 1 marker, 2 questions, 3 markers, 2 questions. Total 8 marks are allocated to this chapter. Once again, 1 mark का छोटा short question, okay? MCQ or 1 marker. 3 marks short sums. Total 8. 6, 7, 8 marks. Now, from these topics, which are pro rata allotment, other than cash, so many topics are there. All those topics, or issue of debenture as collateral security, all such topics which are eliminated, all practical sums relating to them are also not included into current year syllabus. So, which are those questions? If we check question number 11 to 14 and 19 to 29. Same in illustration 8 to 11 and 18 to 24. Like this, these type of questions will not be asked in board exams. Okay. Now, if it is so कि ये नहीं पूछा जाएगा तो पूछा क्या जाए? What will be included? Let us check which are the type of practicals which will be included or the concepts which are included. It is very clearly, I am just very clearly mentioning it to you that only 2 practical concepts are included this year, current year. Just 2 practical concepts. Issue of debentures, that also both types, at installments और lump sum, दोनों included है. इसके बारे में हम practicals के through सीखेंगे. Whether it is at par, at premium or at a discount. All types, okay? If they are issued in installments means issued amount is collected in installments. कुछ allotment, application, allotment and call, like share. Installment means when the amount is not collected in one stroke, it is collected some amount while with application, some amount allotment and some amount went through calls. Sometimes at these 2 stages also complete amount is collected. Like that. And lump sum means full amount is collected at one stroke. So both, whether they are par, premium or discount type of, or in both the cases we will take practical sums and understand the concept. Second concept, see, shares of ownership capital cannot be redeemed. They remain with the company for the lifetime. Okay, but debentures are of redeemable nature. Borrowed capital has to be returned. Redeemable जो debentures हैं, which are to be paid back. For this redeemable debentures, accounting effect we will understand whether the debentures have been issued by company at par, means face value, premium means more than face value, or discount at less than face value. In all cases, if they are redeemable in nature, then what will be the practical effects of it, that all we will understand through practical sums. So only 2 practical concepts, issue of debenture and redemption of debenture. ऐसा हम बोल सकते हैं, 2 topics हम cover करेंगे. So let us start with it and go for first concept, only issue. जैसे शेयर्स होते हैं ऐसे पहले हम खाली इशू ऑफ डिबेंचर की बात कर रहे हैं. सपोज डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, लाइक पार मीन्स व्हाट डू आई मीन बाय आई एम सेइंग पार मीन्स सपोज 100 रुपए का एक डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 है और कंपनी मार्केट में भी
100 पे ही लॉन्च कर रही है, सो इसको बोलते हैं इशूड एट पार और एट फेस वैल्यू. When debentures are issued at face value, this is known as debentures issued at par, like shares. Okay, when the full amount of debenture is called at a time, एक साथ लमसम बुलाएंगे तो क्या होगा, पहले अमाउंट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं, डैश परसेंटेज जो भी है, से फॉर इट इज 8% इंटरेस्ट, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दिस वेरीज, ये चेंज होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट. दिस इज अ कॉमन अकाउंट ओपन बिकॉज लमसम अमाउंट, सारा पैसा एक साथ आ रहा है. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंड देन ट्रांसफर this percent debenture application allotment account debit to debenture account. Okay, पूरा पैसा 100 का 100, सपोज 10,000 शेयर्स होगा तो 10,000 into 100 ऐसा करके 1 लाख रुपीज रिसीव्ड है, ट्रांसफर्ड ऑल्सो लाइक दैट. सिंपल सी एंट्री है, अमाउंट मिला बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर ट्रांसफर डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. इन शॉर्ट दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट विच इज क्लोज्ड. एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, बंद हो गया. एक्चुअली जितना पैसा आया वो किधर ट्रांसफर हुआ, डिबेंचर. ये सिंपल सा सम है. अब आगे बढ़ते हैं. इसी केस में दिस वाज एट पार, वी विल बी टेकिंग सम व्हेन इट इज इशूड एट अ प्रीमियम. दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे साथ में. सो लेट अस सी व्हाट इज इशू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम. नथिंग वेरी न्यू. अगर आप शेयर याद है तो सेम डिबेंचर का भी issue of debenture at a premium means more than face value. Suppose company is issuing one debenture at 130. That means इसकी face value 100 रुपीज है और उसको 30 रुपीज के प्रीमियम पे लॉन्च कर रही है. 30 rupees which is charged higher to the face value is known as what? Will be known as what? As a premium. Means when the debentures are issued at face value, then they are known as issued at par. But then they are issued at more than their face value. The amount which is collected more is said to be issued at a premium. Same here example, if 100 rupees का debenture हम 130 में market में launch कर रहे हैं, that means the debenture is issued at the 30 rupees premium. As per Companies Act 2013, like share only, okay, face value plus लेते हैं, like share only, the amount of premium amount जो है, that is transferred to a special account which is known as security premium reserve account. Okay, separate account में जाता है because this is what? It is not a revenue profit, it is a capital profit. It is to be shown separately. That's why it is shown in a separate account, always in a security premium reserve account. Okay, as it is a capital profit. Not only this much, it can be used for certain fixed purposes, especially for writing off capital losses. किसी भी तरह का capital loss write off करना है, like discount on issue of debenture, loss है capital का. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को वापस करते टाइम हम प्रीमियम दे रहे हैं, मीन्स सम एडिशनल अमाउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ लॉस टू अ कंपनी. मीन्स लेंगे 100 रुपए और दें 130, तो 30 रुपीज जो ज्यादा. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कॉन्सेप्ट वी विल लेटर ऑन अंडरस्टैंड. इवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को स्टार्ट करते हुए जो खर्चे होते हैं. गुडविल, पैटर्न्स, ये क्या है? गुडविल, पैटर्न, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं. इनको राइट ऑफ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. दैट इज वी कैन यूज दिस कैपिटल प्रॉफिट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सिंपल बात समझनी है, ये हमारे लिए फायदा है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है. Company will show this profit in separate account and it is a capital profit, so it can be used to write off capital loss only. Okay, on top of it, this amount is shown under the heading of reserves, security premium reserve account. This is shown under the heading of reserves and surpluses in balance sheet on capital liability side. हमको सबको ये आइडिया है
10th 11th स्टैंडर्ड से आइडिया है कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स और सरप्लसेस का हेडिंग होता है, उसके अंदर ये दिखाते हैं. ओके, दैट इज इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. Getting this information after this, let us check one practical sum. Now we are taking a practical sum of it. Okay, so let us take question number 5 of the textbook, which is for premium. Okay, if debenture is issued at a premium, then what will happen? Happen in the sense, kaise entries? Accounting effects we are just going to see in that case. Please check out very properly this question. I am just trying to highlight only that part of the question which we are doing. Textbook question number 5. Textbook का exercise में से कौन सा question कर रहे हैं हम? 5. Question number 5. Now, there is question, आप अपने बुक का रेफरेंस ले सकते हैं. गर्वी कॉटन लिमिटेड has issued 6 lakhs 10%. कितने? 10% वाले इंटरेस्ट तो उसमें होता ही है. 6,000 कितने शेयर्स हैं? 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज हाउ मच चीज? देखो इसमें अमाउंट का कोई बैरियर नहीं, इसमें कितना है? एट ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? 40% प्रीमियम है. 40% किसका होगा? 500 का. 500 का आप 40% प्रीमियम पे आप लॉन्च कर रहे हैं. 500 का आप 40% निकालने जाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा अमाउंट कितना आता है. हाउ इट, यू मस्ट यूज योर कैलसी. आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा ही कैलसी में सीधा 500 का 40% करके, इफ यू पुट इट 500 into 40%, इट कम्स टू हाउ मेनी रुपीज? दैट मीन्स इट शोज 200 रुपीज. ओके, 200 रुपीज का इसमें क्या हो गया आपका? प्रीमियम. 40% ऑफ 500. आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर योर कन्वीनियंस हियर. आप क्या कर रहे हैं? 500 into 40. फेस वैल्यू का 40 परसेंटेज में है तो अमाउंट निकालना पड़ेगा. इट कम्स टू ₹200 पर डिबेंचर. हर डिबेंचर के ऊपर आप ये अमाउंट ले रहे हैं. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. एप्लीकेशन आई एम राइटिंग हियर. ओके, एप्लीकेशन 200 रुपीज. अलॉटमेंट 300 रुपीज. बट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ब्रेकअप क्या आ जाएगा अलॉटमेंट में? 100 प्लस 200, क्योंकि पता है हमको 200 का प्रीमियम है. ओके, सो इन दिस वे अलॉटमेंट विल कम एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹200 इज टेकन. सो इसमें ब्रेकअप की जरूरत नहीं है. इफ आई ट्राई टू पुट हियर, इसमें जो 200 है ये पूरे 200 कैपिटल के हैं, प्रीमियम का कुछ नहीं है. हियर भी 200 पूरे कैपिटल के हैं, प्रीमियम का कुछ नहीं. इफ आई चेक माई चार्ट लाइक शेयर्स, अभी तो शेयर्स किए, सबको आइडिया है. इस तरह से 500 और प्रीमियम के 200, फुल प्रीमियम अमाउंट इज कलेक्टेड विद द अलॉटमेंट. दिस वॉज गिवन टू यू. नाउ वी हैव पुट इन द मार्केट हाउ मेनी? 6,000. बट सी दिस, applications were received for how many? 9,000. That means 3,000 applications हमारी surplus हैं. Now this excess like share, excess application उसी time reject हो जाएंगी, उनका money हम refund कर देंगे. So this you must know here 3,000 excess application है. That will be in 3,000 का अपन को 200 जो मिल गया होगा वो क्या करना है? Refund. इसी टाइम रिफंड कर देंगे बैंक के थ्रू. ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वॉज रिसीव्ड. पूरा अलॉटमेंट मिल गया है, पूरा कॉल मिल गया है, खाली जर्नल एंट्री पास करनी है. शेयर्स आता है तो ये सम सॉल्व करना बहुत इजी है. सो लेट अस गो फॉर जर्नल एंट्रीज एंड पुट इट. फॉर्मेट वही जनरल वाला फॉर्मेट. सी रेडी, जनरल का फॉर्मेट है. क्या लिखना होता है इधर? डेट, दिस कॉलम पर्टिकुलर्स. वी आर वेल वर्स्ड and train for it by this time. LF आप create कर सकते हैं. LF, then here debit amount in rupees, here credit amount in rupees. Heading जैसे देते हैं journal entries की, तो here also we can put heading. Heading कैसे डालेंगे आप? ये कंपनी का नाम दिया हुआ है गर्वी कॉटन, सो हेडिंग में मैं भी वही लिखने वाली हूं, journal entries of गर्वी कॉटन लिमिटेड. Okay, journal entries of Garvi Cotton Limited. So simple it is.
ओके, लेट अस पुट शेयर का वाला याद है ना पोर्शन। पहले अपन क्या करेंगे, अपन को पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 की जगह 9,000 ने पैसे दिए हैं। 6 की जगह 9,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो 9,000 जनों ने हमको पैसे दिए। अमाउंट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। अभी वर्ड शेयर की जगह क्या करेंगे अपन, और परसेंटेज के साथ 10% सब में लिखा हुआ है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इंस्टेड ऑफ शेयर word will be used debenture. Okay, and you can put here very clearly 9,000 into each would have paid 200. 9 2s are 18, सीधा सीधा 18 lakhs मिले हमारे को। being application money received, simply being short and meaningful narration, being application money received मिली है हमको, राइट। नाउ नेक्स्ट क्लोज कर दे इसको। हाउ टू क्लोज द एंट्री, बाय पुटिंग अ सिंगल लाइन इन पर्टिकुलर्स कॉलम। अब मिले तो है एप्लीकेशन के, कैपिटल के कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। एक्सेस को क्या करना है हमको, हमने ऑलरेडी नोट करके रखा है इसको, रिफंड। चलो एंट्री पास करेंगे, इसको क्लोज कर देना होता है इन शॉर्ट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सेम है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फुल 18 lakhs टू डिबेंचर टू, सॉरी यू मस्ट राइट 10%। कौन सा वाला, 10% डिबेंचर अकाउंट। ओके, कितने का हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट, वही we cannot take more than issued 6,000 issued थे into 200 each, it comes to 6 2s are 12 lakhs to बैंक। रिफंड करना है, कितना रिफंड करना है, एक्सेस 3,000 एक्सेस into 200, 3 2s are 6 lakhs refunded, done। सिंपल सी एंट्री है। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड और ट्रांसफर एडजस्टेड, छोटा सा और मीनिंगफुल, या ट्रांसफर टू कैपिटल एंड रिफंडेड ऑल्सो, दोनों आप पास कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन वाली एंट्रीज हमने कर दी, एप्लीकेशन वाली एंट्रीज कंप्लीट। अब करें अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे ध्यान देना है, कैपिटल का 100 और प्रीमियम का 200। Here same allotment money will be first demand claim by company and then receive। चलो क्लेम करें। 10% वैसे शेयर होता था, शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड, सो सिंपल। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, इधर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे। 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, हाउ वी क्लेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर 6,000 into 100 for capital, 6,000 into 200 for premium. So amount is so simple, 12 lakhs and 6 lakhs, total 18 lakhs. And our sum says bas being allotment demanded, demanded लिख सकते हैं या claimed, जो भी। ओके, कंपनी ने डिमांड किया है, शेयर का आता है तो डिबेंचर का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब जब डिमांड किया तो पैसे मिलेंगे भी, और क्वेश्चन में हमने देखा था सबने दे दिए तो पैसे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फुल रिसीव तो फुल 18। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉमन सेंस, ऐसे ही अलॉटमेंट हो गया। अब कॉल कितना था हमको पता है, 200 का पूरा कैपिटल है, तो 200 6,000 into 200 विल बी डिमांड। सो गो फॉर इट। पहले डिमांड करें
10% debenture call account debit, final call account debit to 10% डिबेंचर अकाउंट. शेयर की जगह वर्ड डिबेंचर यूज करना है, बाकी सब सेम. बीइंग क्या लिखेंगे? मनी डिमांडेड. 200 रुपए है, 6 2 12, 12 लाख रुपए डिमांड किए. एंड वी नो बीइंग मनी डिमांडेड, और सब जने पे कर देते हैं. तो सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट to 10% debenture, final call account. So simple, all have paid. 12 lakhs full amount is received. Being final call money received. Then just a formality, total करना है. 96 lakhs है टोटल इसका. ग्रैंड टोटल आप डाल के, डबल लाइन डाल के, ब्लॉक करके लिख सकते हैं. इसको क्या लिखते हैं अपन? टोटल. ओके, सो सिंपल इट इज. शेयर की जगह वर्ड क्या यूज किया अपन ने? डिबेंचर. ओके, डिबेंचर इश्यूड एट द प्रीमियम. दिस वॉज अवर टॉपिक हियर. नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर इफ डिबेंचर इज इश्यूड फॉर अ डिस्काउंट फर्स्ट. ओके, थैंक यू. बाय. वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट part.